Hello everyone. Today we are going to see the important questions given in the back of this book of semester 2 Indian political system. So let's see. Our chapter first is Indian making of Indian Constitution. So our first question is, what do you mean by the Government of India Act 1858? So, Government of India Act 1858 was brought after by the Revolution of 1857, and basically it was the Queen's Proclamation in which the control of governance in India was taken away from the Britishers to and Britishers sorry British East India Company to British government. So basically it was a proclamation read out in the court of Allahabad, and there the promises that promises in Queen Proclamation it was written that the man who was not directly involved in the killing of the British officers will not be punished. They will be forgiven, and also Government of India Act of 1858 highlighted certain changes, and that was that the head members in the East India Company, the head members of the East India Company, were given the position of important position of in the under the crown government, so that they may not they do not revolt against them. So let's see what is written in 1857 against the misrule of the East India Company, misadministration. They broke out in our country a great revolutionary, variously termed as Indian Mutiny या फिर सिपाही वार या फिर ग्रेट रिवॉल्ट और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. सो इन नामों से इसे संबोधित किया गया था 1857 के रिवॉल्ट को. कौन कौन सा? इंडियन म्यूटिनी, सिपाही वार, ग्रेटेस्ट रिवॉल्ट और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. हालांकि जो वार था फाइनली सप्रेस कर दिया गया था, बट इसका जो था बहुत दूर तक इसका इफेक्ट हुआ था. इट ड्रॉप द लास्ट नेल इनटू द कॉफिन ऑफ द मुगल एम्पायर. जो मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर था वो भी हट गया था. लेड टू द डस्ट द लास्ट होप ऑफ मराठा रिवाइवल. मराठा रिवाइवल का भी जो लास्ट होप था वो भी इसने जो एंड कर दिया था उससे का भी. एंड इट आल्सो एक्सपोज द ग्लेरिंग डिफिशियंसीज ऑफ द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. सो बेसिकली क्या था 1857 में, जो मराठा सम ऑफ द मराठा रूलर्स जो बचे थे जो थोड़े पावरफुल थे वो एंड मुगल मिल के जो थे इसमें जो छोटे मोटे रूलर्स और भी थे वो सारे मिले हुए थे एक समय एक कलेक्टिव अगेंस्ट में कलेक्टिव आके ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में जो था ये रिवॉल्ट किया गया था. तो इसमें मुगल एम्पायर का जो लास्ट जितनी जोड़ थी वो सारा उसने लगा दिया. मराठा का भी रिवाइवल का सपना चूर कर दिया, और जो ब्रिटिश कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिफिशियंसीज थी, जो कमियां थी, वो सारी बाहर आई. इट वॉज फेल्ड इन इंग्लैंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्रांसफर फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन. तो इंग्लैंड में सोचा गया कि जो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का जो कंपनी से लेकर क्राउन को दिया जाए. With this purpose in mind, the British Parliament passed an act in 1858, which is also known as the Act of the Better Government of India. इसका दूसरा नाम क्या था? Act for the Better Government of India. Act for the Better Government of India. Now our second question is, write down any two provision of the Act of 1858. So as I said you, there were many provisions made, such as the punishment provision, power transfer of power, security जो ईस्ट इंडिया कंपनी में हाईएस्ट ऑफिसर्स थे उनको सेम ऑफिसर्स को अंडर क्राउन रूल हाईएस्ट पोस्ट दिया गया था. अदर थिंग वाज दैट जो इंडियंस के लिए जो हाईएस्ट पोजीशन था इन द आर्मीज एंड अदर ऑफिशियल जॉब्स वो डिनाई कर दिया गया था. एंड पनिशमेंट का जो था प्रावधान उसे इंक्रीज कर दिया गया था. सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. सो नंबर वन वाज द ट्रांसफर ऑफ द पावर. So under this act, the administration of India was taken away from the
हैंड्स ऑन द कंपनी एंड वाज गिवन हैंडेड ओवर टू द क्राउन, क्राउन को थमा दिया गया था. नाउ द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यूज ऑफ द इंडियन टेरिटरीज टुगेदर विद द paramountcy rights over and the tributes from the Indian states were vested into the crown British government. Number 2 was the appointment of Secretary of a State. So under this act, provision was made of the office of Secretary of a State to look after the administration of India. So secretary of a state को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि हम इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करो. Who was to be appointed by the King of England, और किंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया के, वो किसके द्वारा, किंग ऑफ इंग्लैंड के राजा द्वारा अपॉइंट किया गया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू बी द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, और ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर, एंड ही वाज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट. उसका जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो था बिफोर ब्रिटिश पार्लियामेंट. So now third question is, what do you mean by the Indian Council Act 1861? So basically, after taking the administration of India directly into their hands, the British government passed an act which is known as the Indian Council Act of 1861. It was an epoch-making status by which the British government made the first important change in the structure of the government. जो इसमें after taking the power in the hand, after taking power, क्राउन ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब रूल आया, उसके बाद से 1858 टू इसके बाद से 1861 में जो था फर्स्ट मेजर स्ट्रक्चर चेंज हुआ इंडिया के गवर्नमेंट में. एंड ये जो चेंज था, ये जो इंडियनाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो मेजर स्टेप बना. द एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट विच कंटिन्यूड विथ माइनर मॉडिफिकेशन. इस जो 1861 का एक्ट ने जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, वो जब तक टिल 1947 तक कंटिन्यूड रही विथ लिटल चेंजेस. सो दिस वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. Our fourth question is, write down the provision of the Act of 1892. So the act flowing were the main provision of the Act of 1892. Number 1, the Act provided for an increase in the number of additional members both in the central and provincial legislative council. तो basically members को increment किया गया था on the demand of that after 1861 Indians demanded, INC, Indian National Congress demanded to increase the number of the participations of Indian members in the councils. So in Act 1892, the Act provided increase in the number of additional members both in central level पर भी और provincial level पे भी. The central legislative council was to have not less than 10 and not more than 16 members additional member. So 10 से कम नहीं और 16 से ज़्यादा नहीं एडिशनल मेंबर का प्रावधान दिया गया था. The strength of additional member in provincial council was also increased. In case of Bombay and Madras, the number of additional member was to be not less than 8 and not more than 20. 8 से कम नहीं, 20 से ज़्यादा नहीं. The maximum number of additional member in case of Bengal and northwestern provinces was to increase was increased to 20 and 15 respectively. So Bengal के लिए 20 and northwestern 15. Our fifth question is, write down any two causes responsible for passing Minto-Morley Reform Act. Actually, Act of 1909 is also known as Minto-Morley Reform Act. So the following act were responsible for the passing of Morley-Minto Reform Act 1919. Number 1, dissatisfaction with the Act of 1892. 1892 के एक्ट से जो इंडियन मेंबर्स थे वो डिससेटिस्फाइड थे, बिकॉज दो दिस एक्ट the Indians were neither given proper representation. 1892 एक्ट में जो इंडियन मेंबर को था, इंडियन मेंबर्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, नॉट द लेजिस्लेचर काउंसिल्स वर गिवन सफिशिएंट पावर. नंबर 2, ऑटोक्रेटिक रूल्स ऑफ द लॉर्ड कर्जन. सो बेसिकली उस वक्त लॉर्ड कर्जन जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, एंड ये रहे 1898 टू 1905.
was very snob and autocratic ruler. During his regime, he took many such steps which has created dissatisfaction among Indians against the British rule in India. Number sixth question is write down any two provision of the Act of 1999. सो इसको और क्या नाम से दिया गया था? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म या मोर्ले मिंटो रिफॉर्म. सो लेट्स सी two provision. Number one is, though through Morley Minto reform, the number of members of Central Legislative Council was increased to 69 out of 37. मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के मेंबर्स हो वो 69 तक इंक्रीज कर दिए गए. उसमें से जो 37 थे ऑफिशियल मेंबर्स थे एंड 32 वे नॉन ऑफिशियल मेंबर. जो ऑफिशियल मेंबर्स है उसमें से 28 जो थे नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल. उसमें 37 में से 28 जो थे 28 जो थे वो गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए जाने वाले थे. एंड रेस्ट जो 9 मेंबर जो बच गए वे एक्स ऑफिसर मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. एंड बाकी जो 32 थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो थे. नंबर सेकेंड, द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल वाज इंक्रीज्ड. फंक्शन जो था लेजिस्लेचर काउंसिल का उसे इंक्रीज कर दिया. मेंबर्स वर गिवन द राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. पहले जो अपना एक्ट था अपना 1861 एंड 1858 1892 इनमें जो था वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का आस्किंग का परमिशन नहीं था. प्लस अगर थोड़ा सा परमिशन था तो एक हफ्ते के प्रायर नोटिस पे मतलब वो क्वेश्चन पूछा जा सकता था. अदरवाइज वो क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं था. एंड इफ ब्रिटिश ऑफिसर्स डोंट वांट टू गिव दिस आंसर आंसर दोज क्वेश्चन देन ही और शी कैन डिनाई दोज. सो now let's see the two defects of the Act of 1999. Our question is write down any two weaknesses of Morley Minto Reform Act 1999. So actually after 1999 another act came, but first let's see what was the defects in the Act of 1999. So following were the weaknesses of the Morley Minto reforms. कौन कौन सा ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला बनाया गया था जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में सेटअप किया जा सके. वेयर द कांग्रेस पार्टी हैड डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन 1996. जिसमें कि 1996 में कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें चाहिए. बट जो 1999 एक्ट जो आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो एक्ट जो आया था, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था. नो प्रोविजंस वाज मेड. Also on the other side, Lord Morley had said that his objective was not to introduce responsible government in India. और जो उस वक्त के मॉर्ले थे उन्होंने अनाउंस किया था कि हम कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. नंबर सेकंड जो डिफेक्ट था कि मॉर्ले दो थ्रू द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1999 India's unity was given a severe blow because through it different class and communities were provided separate representation. Actually 1999 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट था उसमें बेसिकली डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस दिया गया था. मुस्लिम्स को अलग, सिख्स को अलग कर दिया गया था, कम्युनिटी वाइज डिफ्रेंसिएशन किया गया था. एंड बेसिकली इट वाज कोशिश ऑफ दैट ब्रिटिश ऑफिसर्स टू डिस्ट्रॉय द यूनिटी ऑफ द इंडियंस. The seeds of division of India were sown in 1999 as a result of which India got divided into 1947. तो 1909 में जो सीड जो था डिवीजन का बोया गया था यही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में बोया गया था. एंड विच इन 1947 we see as Pakistan. India got divided into Pakistan and India. So number 8th question is write down the characteristics of Montague Declaration. So Montague Declarations का क्या characteristics था? While living within the British Empire, the objective of the British government was to introduce responsible government in India. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद Montague Declaration आया था एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था to introduce responsible government in India. There will be gradual development in stages of responsible government as self rule institution. हालांकि यहाँ पे बोला गया था ग्रेजुअल स्टेज डेवलपमेंट सेल्फ रूल की तरफ ग्रेजुअली स्टेप्स लिया जाएगा. बट इसके मॉन्टेग डिक्लेरेशन के बाद भी एक अपना एक्ट आया था. इट वाज
इसका जो डीमैरिड था इसने क्लियर डेडलाइन नहीं बताया था कि कब तक सेल्फ रूल इंडिया में इस्टेब्लिश कर लेना है। नंबर थर्ड जो अपना करेक्टरिस्टिक्स था, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर टू बी द सोल जज ऑफ द टाइम एंड मेयर ऑफ द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तय करेगी कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा, नेक्स्ट चेंजेस कब आएगा टुवर्ड्स द सेल्फ एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। The next installment of responsible government will depend on the development made by the Indians in running of the responsible government. So basically, it was like that Britishers can deny that later period Britishers were free to deny that Indians by saying that Indians are not ready for the self government, and so they were going to a state for very long. So basically characteristics क्या रहा मॉन्टेग डिक्लेरेशन का कि इसमें सेल्फ रूल गवर्नमेंट का जो बात किया गया था। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। राइट डाउन एनी टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो कौन कौन से दो फैक्टर है जिससे कि 1919 का जो अपना एक्ट आया वो उसके टू फैक्टर बताओ जो जिसके कारण मतलब प्रभावित होकर ये एक्ट आया। नंबर 1, दो द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वर सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट विद द यूज ऑफ रथलेस फोर्स, it had created a sense of fear in the minds of the government. As a result of this, the British government had to think of giving administrative reforms to the Indians. हालांकि बात किया जा रहा है कि प्रीवियस जितने भी रेवोल्यूशंस थे हालांकि ब्रिटिश द्वारा दबा दिया गया था, बट जो उसको खौफ था, जो उसका डर था वो अभी भी ब्रिटिशर्स के माइंड में था, इसलिए उस देना ही पड़ा। नंबर 2, लोकमान्य तिलक एंड एनी बेसेंट हैड फाउंड होम रूल लीग इन इंडिया। कौन? लोकमान्य तिलक एंड एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जब बहुत जानी मानी मतलब इंडियन पास्ट थे। सो बेसिकली फाउंडेड द होम रूल लीग इन इंडिया मूवमेंट was started to get Swaraj for India. Swaraj means self rule, खुद का राज, with the purpose to establish self rule in India, and this movement had created awareness among the people of India. Write down 10th question, write down any two provision of the Government of India Act 1919. So the two provision are the Act of 1919 started with the preamble and promise made in declaration 1970 were repeated in the preamble. जो 1917 के प्रीएम्बल में प्रोमिसेस मेड किया गया था वो 1919 के प्रीएम्बल में भी दोहराया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लीगल सैंक्शन वाज प्रोवाइडेड टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एज वाज प्रोनाउंस्ड थ्रू द मॉन्टेग डिक्लेरेशन 1917। मॉन्टेग डिक्लेरेशन कब आया था? 1917। बेसिकली आफ्टर 1909 सी लेट्स से कि गवर्नमेंट कैसे कैसे पास की गई एक्ट 1851 1858, उसके बाद 1861 आया, फिर उसके बाद 1892, उसके बाद फिर 1909, उसके बाद फिर 1917 आया एंड उसके बाद फिर 1919। So under the Act of 1919 the subjects were divided into two lists. कौन कौन से दो लिस्ट में बांटे गए थे सब्जेक्ट? सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, एंड जो कि अभी भी ये चीज़ अभी भी प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखी जा सकती है कि अभी भी सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट में बांटे गए। द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वेयर इन द सेंट्रल लिस्ट एंड ऑफ प्रोविंशियल इंपॉर्टेंस वेयर इन द प्रोविंशियल लिस्ट। सो नाउ what was the number? Our 11th question is what was the hierarchy as introduced in provinces? Provinces में इंट्रोड्यूस किया गया ये डायरकी जो है, ये डायरकी क्या है? सो बेसिकली अंडर द एक्ट ऑफ 1919 जो अपना मॉन्टेग डिक्लेरेशन के बाद जो एक्ट आया था वो 1919 का आया था, एंड द कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एक्ट वाज डायरकी। सो अंडर द एक्ट ऑफ 1919 the subject included in provincial list were further divided into two categories. पहला तो 1919 एक्चुअली जो अपना 1919 में आया था उसमें सब्जेक्ट पहले तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में डिवाइड किया गया था सब्जेक्ट्स को।
उसके बाद फिर अपना जो अगेन प्रोविंशियल लिस्ट में थे वो फर्दर डिवाइड हुए थे टू कैटेगरीज. नंबर 1 एज रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट. सो बेसिकली रिजर्व सब्जेक्ट जो इंक्लूड करता था वो था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, पुलिस, इरिगेशन एंड कैनाल्स, लैंड रेवेन्यूज, फेमिन रिलीफ, कंट्रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा. एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स वर गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर एंड हिज काउंसिलर. इसका जो कंट्रोल था अपना रिजर्व सब्जेक्ट का जो कंट्रोल लाई करता था वो गवर्नर के हैंड में एंड हिज काउंसिलर्स के हैंड में लाई करता था. एंड वी नो दैट गवर्नर वर अपॉइंटेड बाय द नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन. एंड नाउ लेट्स सी द ट्रांसफर सब्जेक्ट. सो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या इंक्लूड किया गया था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिशरीज, रिलीजियस इंडोमेंट्स, so medical administration etc. and put under the control of governor and his ministers. गवर्नर और मिनिस्टर्स के कंट्रोल में था. वो वे नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर आउट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. और जो ये जो गवर्नर एंड मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स थे वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे? गवर्नर और इलेक्टेड. गवर्नर इलेक्ट करता था किसके? आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर है वही इसमें अपॉइंट मतलब कंट्रोल कर सकते थे, जो कि आफ्टर गवर्नर जो है इनको अपॉइंट करे पोस्ट. सो दिस डबल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज डायरकी. इसको डबल रूल एडमिनिस्ट्रेशन को डायरकी बताया गया. इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द known as डायरकी, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. 19 अभी हमने देखा था कि 1919 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए बात की गई थी. तो ये हमारा जो था डायरकी जो था फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था. सो अगेन एक यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक की बात करें तो मेजर ड्रॉबैक ये था कि ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स है ये प्रॉपरली जो अब कहें तो प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया गया था, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था. जैसे कि देखिए आप इरिगेशन एंड कैनाल्स जो रिजर्व सब्जेक्ट में, वेरस जो एग्रीकल्चर है वो अपना एग्रीकल्चर एंड फिशरीज जो है वो अपना ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में. सो एक्चुअली जो प्रॉपर प्लान्ड था, प्लान तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो नहीं हुआ था, बस जस्ट एज अ केस हुआ था. सो इन लेटर पीरियड इट डिमांडेड चेंजेस. सो लेट्स सी द शॉर्ट कमिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. सो लिमिटेड राइट टू वोट. एक्चुअली 1919 में जो वोटिंग राइट तो प्रोवाइड की गई थी बट लिमिटेड थी. द हाई वेज अर्नर और जो टैक्स पेयर्स हैं केवल उन्हीं को वोटिंग राइट दी गई थी. लेट्स सी. Though through this act more people were given the right to vote, yet the qualification to get the right to vote were kept very high. Qualifications चाहिए थे कि वोट देने के लिए और वो बहुत हाई सेट किए गए थे, which very few people were eligible for right to vote. बहुत कम लोगों को मतलब वोट के लिए एलिजिबल थे. Enlargement of communal representation. Through the act of 1919, the communal representation in India was further enlarged, as a result of which the peacefully living peoples were divided in the name of religion and caste. तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो था इंस्टॉलमेंट था ये अपना जो डिवीज़न था इसने इंट्रोड्यूस किया था, उसी का प्रभाव रहा कि 1919 से जो स्टार्ट हुआ था ये डिवीज़न वाली बेसिकली फिर से हवा देना ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था आफ्टर 1858 क्वींस प्रोक्लेमेशन. तो ये जो अगेन फर्दर जो ये ब्लो किया ये 1919 के अपना एक्ट ने, जिसने कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा अहमियत दी. नंबर 13th क्वेश्चन इज राइट डाउन एनी टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो 1919 के बाद कौन सा एक्ट आया? 1935 आया. So many factors were responsible for the passing of the Government of India Act 1935. In fact, the anger against the British was increasing day by day. दिन प्रतिदिन जो ब्रिटिश के अगेंस्ट गुस्सा था इंडियंस के मन में वो बढ़ता गया. द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. नंबर 1 पासिंग ऑफ रॉबर्ट एक्ट. सो विद द पर्पस ऑफ सप्रेसिंग द रॉबर्ट एक्ट बेसिकली क्या था कि विदाउट बेसिकली बिना कोर्ट के बिना
without passing any बेसिकली वो बिना रीज़न बताए किसी को अरेस्ट कर सकते थे. दे डू नॉट नीड टू गिव रीज़न फॉर द अरेस्टिंग पीपल्स. सो बेसिकली और दूसरा जो हुआ था वो था ट्रेजिडी ऑफ जालियांवाला बाग. टू अपोज द रिवोल्ट बिल ऑन March 30, 1919, the people had gathered in the Jallianwala Bagh where they were fired at without any provocation, as a result of which hundreds of people were killed and thousands were injured. The Act of 1935 was passed to pacify the growing anger of the people. तो बेसिकली ये एक अटेम्प्ट था कि जो इंडियंस पीपल्स के अंदर जो एंगर ग्रो हो रही है उसे सप्रेस किया जाए. बट एज वी नो सप्रेसिंग एंगर कभी दबा कर शांत नहीं किया जा सकता. So write down any 14th question is write down any two factor of the Government of India Act 1935. Number 1, provision of All India Federation. Provision of All India Federation, like basically the Act of 1935 envisaged an All India Federation which was to consist 11 governor provinces, 6 chief governor provinces, and as much Indian states were willing to join it. Joining of federation was compulsory for provinces where it was optional for the Indian states. Provinces का compulsory था लेकिन जो Indian states थे जो princely states थे उनके लिए optional था. Number 2 जो था division of subjects. Under the Act of 1935, the subjects were divided into 3 lists such as federal list, provincial list and concurrent list. अभी भी हम देख सकते हैं present constitution में also these distributions are present. So basically the federal legislature was empowered to pass law. फेडरल का काम था लॉ पास करने का ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फेडरल लिस्ट. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो था वो पास लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन प्रोविंशियल लिस्ट and both the federal legislature and provincial legislature was empowered to pass law on the subjects included in concurrent list. तो 3 लिस्ट बनाया गया था. फेडरल में जो थे अपना फेडरल लेजिस्लेचर वो लॉ पास कर सकता था. प्रोविंशियल में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड जो अपना कंकरेंट में था वो फेडरल लेजिस्लेचर भी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बोथ कैन पास. Now number 15th question is what was the provincial autonomy introduced under the Government of India Act 1935? So under the Government of India Act 1935, by abolishing diarchy in the provinces, complete responsible government was introduced in the provinces, which was given the name of provincial autonomy. Under the Act of 1935, provision was made of Council of Ministers in the provinces to aid and advise the governor in the running of administration, and the council minister was made responsible before the provincial legislature. The member of the council of ministers were to be taken from the single party with the purpose to inculcate the feeling of collective responsibility जगाने के लिए. And the provincial legislature was further expanded. And provincial list में 54 subjects 30 and 33 subjects were included in the concurrent list, and provincial list was empowered to pass law on the subjects included in both list. तो पहले हमने अभी देखा था कि जो दोनों के पावर के लिए कानून बनाने के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को मतलब was made. Number 16 question is write down the shortcoming of the provincial autonomy enforced under the Government of India Act 1935. So following were the shortcomings of the provincial autonomy introduced under the government. Number 1, जो गवर्नर था उसको मतलब ज़्यादा पावर दिया गया था which were to be used by them in their discussion, and this was against the principle of provincial autonomy. Number 2, governor were not bound to accept the advice of the minister. पहले ही ministers थे and दो ministers were Indian, but जो गवर्नर था वो बाउंड नहीं था उनके एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए. Number 3, provincial legislature were under the control of governor, because the governor could dissolve the lower house of the provincial legislature when he so desired. जब उसकी इच्छा करे वो dissolve कर सकता था. Besides this, some bills needed the prior approval of the governor before they were introduced in the house.
तो प्रायर अप्रूवल चाहिए होते थे गवर्नर के बिना अपना लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले। नंबर 4, द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज फर्दर एक्सपेंडेड। 1935 में अगेन जो था वो एक्सपैंड किया गया था। सो मेजर शॉर्टकम्स क्या रहे कि एक डिवीज़न जो था वो इंडियंस में क्रिएट करने की कोशिश की गई। 2 रिप्रेजेंटेशन दिया गया इंडियन मेंबर्स को, बट उन जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं था या गवर्नर का कोड इजीली रिजेक्ट देम, एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, प्रॉपर वॉइस रेजिंग पावर नहीं मिला था इंडियंस को। सो दिस इज our chapter 1 video, and next video we will see the questions of the chapter 2. So thank you.